آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی کہانی سنیں گے جو لڑائی تلواروں کی نہیں بلکہ ایمان اور طاقت کی تھی۔ ایک طرف فرعون تھا، دنیا کا سب سے طاقتور اور ظالم حکمران جو خود کو خدا کہتا تھا۔ دوسری طرف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کے رسول، جن کے پاس صرف اللہ پر مکمل بھروسہ اور ایک سادہ لاٹھی تھی۔ ایک بے بس بچہ کیسے موت سے بچ کر اپنے سب سے بڑے دشمن کے محل میں بڑا ہوا، ایک لاٹھی کے وار سے سمندر کیسے دو حصوں میں بٹ گیا، اور غرور سے بھرپور فرعون آخرکار کیسے گرا۔ آؤ اس دلچسپ اور گہری تعلیم دینے والی تاریخ کے سفر میں کھو جاتے ہیں۔ تاریخ کے کچھ باب خون سے لکھے جاتے ہیں اور کچھ حکمرانوں کے نام صرف نفرت کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے مصر میں دریائے نائل کے کنارے ایک شاندار تہذیب کھڑی تھی۔ عظیم اہرام اور بڑے محلوں کے پیچھے ہزاروں لوگ چپ چاپ تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس وقت کا حکمران فرعون تھا۔ طاقت کے غرور میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ خود کو خالق، خود خدا سمجھنے لگا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا بادشاہ ہوں۔ اپنے غرور کی آگ میں بنی اسرائیل کی قوم راکھ بن رہی تھی۔ جو لوگ نبی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزت سے مصر آئے تھے، وقت کے ساتھ فرعون کے غلام بن گئے۔ انہیں سب سے مشکل کام کرنے پر مجبور کیا جاتا اور بدلے میں صرف کوڑے اور ذلت ملتی۔ جب فرعون کی ظلمت اپنے عروج پر پہنچ گئی، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب بس ہونا چاہیے۔ اندھیرا۔ ایک دن فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ اٹھ رہا ہے جو مصریوں کے گھروں کو جلا رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو بالکل نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے جاگا اور اپنے پورے سلطنت کے جادوگروں اور پیش گواہ کو بلایا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا ہاتھ تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ موت کے خوف سے فرعون پاگل ہو گیا۔ اس نے ظالم حکم۔ اس کے سپاہیوں نے ہر اسرائیلی گھر پر حملے شروع کر دیے۔ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا، اسے ماں کی بانہوں سے چھین کر مار دیا جاتا، جبکہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ خادموں کے طور پر استعمال ہوں۔ مصر کی زمین بے گناہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہی وہ خوفناک وقت تھا جب ہر لمحہ موت کا سایہ لاتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک معزز گھرانے میں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کا ماں کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اگر فرعون کے قاتلوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے بھی لے جائیں گے، لیکن جسے اللہ حفاظت دے، زمین پر کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے نبی موسیٰ کی ماں کے دل میں خاص رہنمائی رکھی۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ جب تم اس کی حفاظت کے بارے میں خوف زدہ ہو تو اسے دریا میں رکھ دو اور نہ گھبراؤ نہ اداس ہو۔ بے شک ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اس وعدے پر نبی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا۔ وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا اور جسے اس نے اپنے دودھ سے پلایا تھا، اب اسے وہ اپنے ہاتھوں سے دریا میں رکھ رہی تھی۔ اس نے ایک مضبوط ٹوکری تیار کی۔ بے پناہ محبت کے ساتھ اس نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے دل میں اللہ پر بے حد ایمان تھا۔ آخرکار تمام لگاؤ چھوڑ کر اس نے ٹوکری کو دریائے نیل میں بہنے دیا۔ وہ چھوٹی سی ٹوکری لہروں کے ساتھ بہنے لگی، ایک نامعلوم منزل کی طرف۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تیرتا ہوا بچہ ایک دن دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ نیل کے لہروں پر تیرتا ہوا ٹوکری آگے بڑھتی رہی۔ اللہ کا منصوبہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہی فرعون جس نے اسرائیلی بچوں کو مارنے کے لیے ہزاروں سپاہی بھیجے تھے، ادا نے اس ٹوکری کو فرعون کے محل کے غسل خانے تک پہنچا دیا۔ فرعون کے گھر والوں نے دریا میں وہ ٹوکری پائی۔
उन्होंने सोचा शायद इसके अंदर खजाना होगा। मौसीकी जब उसने इसे खोला तो वो एक खूबसूरत बच्चा देखकर हैरान रह गए जो इलाही रोशनी से दमक रहा था। ये खबर फौरन फिरौन तक पहुंच गई। वो दौड़ता हुआ आया और बच्चे को देखा। इसके दिल में शक पैदा हो गया। उसने सोचा कि यह जरूर कोई इस्राएली बच्चा होगा जो छुपाया गया है। उसका जालिम दिल फौरन बच्चे को कत्ल करने का चाहता था। लेकिन देखो अल्लाह की कुदरत, फिरौन की बीवी आसिया वहां मौजूद थीं। वो बहुत नेक और मेहरबान औरत थीं। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम के मासूम चेहरे को देखकर अल्लाह ने उनके दिल को मोहब्बत और रहम से भर दिया। वो फिरौन रुका और कहा, इस बच्चे को मत मारो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा। मौसीकी ये हमारे लिए फायदामंद हो सकता है या हम उसे अपना बेटा बना सकते हैं। फिरौन अपनी बीवी की दरखास्त मानने से इनकार नहीं कर सका। इसे मालूम नहीं था कि वो अपने ही घर में इस शख्स को पनाह दे रहा है जो उसे तबाह करेगा। लेकिन महल में एक नया मसला शुरू हो गया। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम का बच्चा भूख से रो रहा था, लेकिन वो किसी दूध पिलाने वाली से दूध नहीं पीता था। फिरौन ने शहर की बेहतरीन दूध पिलाने वालियों को बुलाया। जब उन्होंने एक के बाद एक कोशिश की, लेकिन नबी मूसा ने सबको इनकार कर दिया। फिरौन और सब लोग परेशान हो गए। अगर बच्चा दूध ना पीता तो वो मर जाता। असल में ये अल्लाह का खास मौजिज़ा था कि नबी मूसा अलैहि अस्सलाम सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते। इसी दौरान नबी मूसा अलैहि अस्सलाम की बड़ी बहन को उनकी माँ ने कहा था कि वो दौड़ से टोकरी का पीछा करे। वो चुपके से सब कुछ देखती रही। जब उसने देखा कि महल के सब लोग बच्चे के दूध ना पीने पर फिक्रमंद हैं, तो वो बहादुरी से आगे बढ़ी। उसने फिरौन के लोगों से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा खानदान दिखाऊंगा जो इस बच्चे की तुम्हारी तरफ से देखभाल करेगा और उसके लिए नेक ख्वाहिशात रखेगा। महल वालों ने मान लिया। मौसीकी वो सोच रहे थे शायद बच्चा इस औरत से दूध पीना कबूल करे। बहन ने फौरन उनकी माँ को ले आई। जब नबी मूसा अलैहि अस्सलाम की माँ महल में दाखिल हुई और बच्चे को गिले लगाया तो एक अजीब बात हुई। वो बच्चा जो पहले दूध पीना इनकार कर रहा था, अचानक सुकून से दूध पीने लगा। फिरौन और असा बहुत खुश हुए देखकर। असा ने माँ से कहा, इस बच्चे को अपने पास रखो और उसे खिलाओ, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। इसी तरह अल्लाह ने अपना वदा पूरा किया। मौसीकी नबी मूसा अलैहि अस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस लौटा दिया गया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो। माँ ने समझ लिया कि अल्लाह का वदा हमेशा सच्चा होता है, चाहे ज्यादातर लोग इसे न जानें। फिरौन की दौलत और हिफाजत के बीच फिरौन की आंखों के सामने वो बच्चा बड़ा हुआ जो एक दिन फिरौन की सल्तनत को तबाह कर देगा। माहौल तो ऐसा था जैसे माँ के प्यार भरे लम्स के साथ। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम बड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता जवानी की तरफ बढ़ने लगे। महल की ऐशो आराम में और अपनी माँ के प्यार भरे ख्याल के साए तले कई साल गुजर गए। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम अब वो छोटा बच्चा नहीं रहे थे। वो एक ताकतवर और मजबूत नौजवान बन चुके थे और अल्लाह ने उन्हें जबरदस्त जिस्मानी ताकत के साथ साथ गहरी इल्म और हिकमत भी दी थी। अगरचे वो फिरौन के महल में पलकर बड़े हुए थे, मगर बनी इसराइल से मोहब्बत और मजलूमों के लिए हमदर्दी उनके दिल में हमेशा मौजूद थी। वो जानता था कि वो इस शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, इसकी जुड़े मजलूमों में थीं। एक दिन हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम शहर में दाखिल हुए जब लोग दोपहर को आराम कर रहे थे और गलियां तकरीबन खाली थीं। अचानक उन्होंने दो मर्दों को लड़ते देखा। एक अपने ही लोगों में से था, बारनी इसराइल, और दूसरा फिरौन की कौम का एक मिस्री था। इसराइली आदमी ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। अपने लोगों पर जुल्म देखकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के दिल में गुस्सा अलिफाटे। उन्होंने एक जोरदार मुक्का मारा। एक मिस्री आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की,
इसका इरादा मारना नहीं था, सिर्फ लड़ाई रोकनी थी। लेकिन अल्लाह के फजल से हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम में जबरदस्त ताकत थी। वो एक ज़र्ब ने ही मिस्री को हलाक कर दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तौबा के दिल के साथ उन्होंने कहा, यकीनन ये शैतान का काम है। गिले की सफाई, वो इंसान का खुला दुश्मन है। उन्होंने बढ़िए फौरन हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे मुआफ कर। और अल्लाह ने देखा कि दिल की सच्चाई के साथ इसने उसे मुआफ कर दिया। लेकिन इस वाक़ये के बाद नबी मूसा शहर में एहतियात से चलने लगे, मौसीकी इस खौफ से कि अगर फ़िरौन को कत्ल की खबर हुई तो बचना मुमकिन नहीं होगा। अगले दिन वो दोबारा बाहर निकले। उन्होंने कल वाले ही आदमी को देखा जो किसी दूसरे से लड़ रहा था और नबी मूसा को मदद के लिए पुकार रहा था। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम उसकी हमाकत पर नाराज हो गए और कहा, तुम बिल्कुल गुमराह हो। जब नबी मूसा अलैहि अस्सलाम लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़े तो इस आदमी ने समझा कि वो जा रहा है। इस पर मारा और चलाया, ओ मूसा, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो जैसे कल एक आदमी को मार दिया था? क्या तुम जमीन पर सिर्फ जालिम बनना चाहते हो, अमन कायम करने वाले नहीं? इसी चलाने से कल की खुफिया कत्ल की खबर आम हो गई। ये खबर जल्दी फ़िरौन के दरबार तक पहुंच गई। फ़िरौन और उसके मुशीरान ने फैसला किया कि नबी मूसा अलैहि अस्सलाम को मार दिया जाए। जब सिपाही उनकी तलाश में निकले तो शहर के किनारे से एक नेक दिल आदमी नबी मूसा अलैहि अस्सलाम के पास दौड़ा और कहा, ओ मूसा, सरदार तुम्हें मारने का मंसूबा बना रहे हैं, शहर छोड़ दो अभी के अभी। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ये बात बता रहा हूं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया। वो समझ गए कि मिस्र में रहना अब महफूज नहीं रहा। वो इस महल को छोड़कर जहां वो बड़े हुए थे और इस शहर को छोड़कर जो वो जानते थे, वो सिर्फ अपने कपड़ों के साथ निकले। ना उनके पास खाना था, ना पानी, ना कोई रहनुमाई। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा उनके दिल में था। खौफ के मारे वो मिस्र की सरहद उबूर किए और कहा, ए मेरे रब, मुझे उन जालिम लोगों से बचाओ। फिर वो एक नामालूम जमीन की तरफ चलने लगे जिसे कहा जाता था मदियान। वो शहजादा जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, अब एक तन्हा मुसाफिर बन गया था जो जलती हुई रेगिस्तान में था। सिर्फ अपने रब की मदद को अपना सहारा बनाए मिस्र की आरामदेह जिंदगी छोड़कर नबी मूसा अलैहि अस्सलाम तन्हा जलती हुई रेत पर चल रहे थे। पांव में जूते नहीं, ना खाना, ना पानी, सर पर तपती हुई धूप। भूख, प्यास और थकन ने उनका जिस्म तकरीबन तोड़ दिया था। पते खाकर और अल्लाह पर भरोसा करके वो 8 दिन तक चलते रहे और आखिरकार मदियान की जमीन पर पहुंच गए। शहर के करीब एक कुनवा था जहां मकामी चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। थका हुआ हजरत मूसा दरख्त के नीचे बैठ गया जो कुनवे के पास था। उसने देखा कि 2 शाइस्ता नौजवान औरतें अपने रेवड़ के साथ थोड़ा दौर खड़ी हैं, मर्दों के हुजूम में शामिल नहीं हो रही थीं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी थकन भूलकर उनके पास गए और पूछा कि अलिफ बात है, तुम लोग यहां क्यों खड़ी हो? उन्होंने अदब से जवाब दिया, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है और आ नहीं सकता। हम अपने जानवरों को इस वक्त पानी नहीं पिला सकते जब तक चरवाहे अपना काम खत्म न करके चले जाएं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के दिल में रहम भर गया। उसने अकेले ही कुनवे के मुंह से वो बड़ा पत्थर हटाया जो आमतौर पर 10 ताकतवर आदमियों की जरूरत होती थी और उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर वो दोबारा दरख्त के नीचे बैठ गया और एक दुआ की जो तारीख में याद रखी जाती है, ए मेरे रब, मैं तेरे भेजे हुए हर नेकी का मोहताज हूं। कुछ देर बाद उन 2 लड़कियों में से एक शर्माते हुए नबी मूसा अलैहि अस्सलाम के पास लौटी और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम उनके साथ गए और इस बुजुर्ग से मिले। ज्यादातर उलमा कहते हैं कि वो नबी थे।
नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया। वो बूढ़ा आदमी उनको तसल्ली देता है और कहता है, डर मत, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। फिर इसने एक पेशकश की, मैं चाहता हूं कि मेरी 2 बेटियों में से एक तुमसे शादी करे, बशर्ते कि तुम मेरे लिए 8 साल काम करो, और अगर तुम 10 साल पूरे करोगे तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने कबूल कर लिया। यूं मिस्र के महल का शहजादा अब मदीन के सहरा में भेड़ें चुराने लगा। उसी की ये अल्लाह की तरफ से खास तरबियत थी। नबुव्वत की भारी जिम्मेदारी देने से पहले अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र, बर्दाश्त और आम लोगों की जिंदगी सिखाई। वो वहां 10 साल तक रहे, घर के काम किए और अपने किरदार को मजीद मजबूत बनाया। जब मुआहिदा खत्म हुआ तो हजरत मूसा ने अपने खानदान को लेकर वतन मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक तारीख और सर्द रात को वो सीना वादी में जबल तौर के करीब पहुंचे। इस ठंडी रात में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक आग की रोशनी देखी। उन्होंने कहा कि खानदान, यहां रुक जाओ, मैंने आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ आग ला सिक्कों और रास्ते के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकूं। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी लाठी लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। जब वो आग के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मौसीकी एक सब्ज जिंदा दरख्त आग में जल रहा था, लेकिन दरख्त जल नहीं रहा था, बल्कि रोशनी और ज्यादा रोशन हो रही थी। वो हैरत में खड़े रह गए। फिर मुकद्दस वादी में एक जोरदार आवाज गूंजी। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, खुद रब अल आलमीन ने उन्हें पुकारा। आवाज ने कहा, एक मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतारो क्योंकि तुम मुकद्दस वादी तौर में हो। मैंने तुम्हें चुना है, लिहाजा जो कुछ तुम्हें बताया जाए उसे ध्यान से सुनो। बेशक मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो ताकि मेरी याद रखो। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम खौफ और आजिज़ी से कांपने लगे। अल्लाह ने उनसे पूछा, ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरा असा है। तो अल्लाह ने फरमाया, इसे फेंक दो। जब उन्होंने उसे फेंका तो वो एक बड़ा बन गया सांप। अल्लाह ने कहा, डर मत, उसे उठा लो, मैं इसे इसकी असल हालत में वापस ले आऊंगा। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इसे उठाया तो वो दोबारा असा बन गया। फिर अल्लाह ने कहा, अपना हाथ बाजू के नीचे डालकर निकालो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके हाथ सूरज की तरह चमकने लगे। अल्लाह ने फरमाया, ये दोनों मेरे बड़े निशान हैं। अब फिरौन के पास जाओ, क्योंकि इसने सब हदें पार कर ली हैं। इसे कहो कि बनी इसराइल को आजाद कर दे। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जानते थे कि फिरौन कितना खौफनाक है, इसलिए उन्होंने पूछा। अल्लाह ने अपने भाई हजरत हारून अलैहि अस्सलाम को मदद के लिए भेजा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इस तन्हा रात को जबल तौर पर वो आम आदमी जो पहाड़ पर चढ़ा था, वो बेहद ताकत के साथ नबी बनकर नीचे उतरा। इसके सामने मौसीकी की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे जालिम हुक्मरान का सामना करना था। नबुव्वत की अजीम जिम्मेदारी लेकर जबल तौर की वीरान वादी से नबी मूसा मिस्र लूट आए। उनके साथ उनके भाई और मददगार नबी हारून अलैहि अस्सलाम भी थे। कई सालों बाद वो दोबारा इस पहचाने हुए महल में दाखिल हुए, मगर इस बार नहीं बेटे की तरह नहीं, बल्कि दुनिया के रब की तरफ से भेजे गए पैगाम्बर के तौर पर। मौसीकी और फिरौन का दरबार शान व शौकत से भरा हुआ था। वजीरों और फौजी कमांडरों के घेराव में फिरौन बैठा था, जो तकब्बुर की जीती जागती मिसाल था। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम और नबी हारून अलैहि अस्सलाम बेखूफी से इसके सामने खड़े थे। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने जोरदार आवाज में कहा, ए फिरौन, मैं दुनिया के रब का भेजा हुआ पैगाम्बर हूं। मैं अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी कहता हूं वो सच है।
बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद कर दे और उन्हें जाने दे। फिरौन ने तहकीर से मुस्कुरा कर कहा, क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने दरमियान नहीं पाला है? तुम हमारी खुराक और पानी पर पिलकर बड़े हुए, और तुम ही वो हो जिसने एक खौफनाक जुर्म किया और भाग गए। अब तुम नबूवत का दावा करते हो। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मैंने वो काम अनजाने में किया था, लेकिन मेरे रब ने मुझे इल्म दिया और मुझे भेजने वालों में शामिल किया। और जो एहसान तुम जिक्र कर रहे हो वो दरअसल तुम्हारी अपनी जुल्म का नतीजा है। तुमने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया, इसलिए मुझे पनाह लेनी पड़ी। तुम्हारे घर में दलाइल हार कर फिरौन गुस्से से भर गया। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशान दिखाओ। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। एक लम्हे में वो एक बड़ी सांप बन गई, अपनी खाल फैलाई और सिसकने लगी। अदालत में सब लोग खौफ से पीछे हट गए। फिर इसने अपना हाथ बाजू के नीचे से निकाला जो सबके सामने सूरज की तरह चमक रहा था। ये मुजिज़े देखकर भी फिरौन ईमान नहीं लाया। उसने कहा, ये सब जादू है। इसने अपने दरबारियों से कहा, ये आदमी वो एक माहिर जादूगर था जो तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकालना चाहता था। सच छुपाने के लिए फिरौन ने एक बड़ा मुकाबला रखा। मौसीकी, इसने कहा, हमारे भी बड़े जादूगर हैं। काफ दिन मुकर्रर किया जाए जब मिस्र के सारे लोग मौसीकी मौजूद हों और हमारे जादूगर मूसा को शिकस्त दें। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने रजामंदी जाहिर की और दिन त्यौहार की सुबह मुकर्रर हुआ। मुल्क के बेहतरीन जादूगर जमा किए गए। हजारों पुरजोश लोग बड़े मैदान को भर चुके थे। एक तरफ फख्र से खड़े थे फिरौन और उसकी जादूगरों की फौज, दूसरी तरफ अल्लाह के दो नबी, नबी मूसा अलैहि अस्सलाम और नबी हारून अलैहि अस्सलाम खड़े थे। जादूगरों ने फिरौन से इनाम और इज्जत मांगी। फिरौन ने कहा, हाँ, अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे नजदीक तरीन साथियों में शामिल होगे। फिर उन्होंने नबी मूसा अलैहि अस्सलाम से पूछा, क्या तुम पहले फेंकोगे या हम? नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, तुम पहले फेंको। जादूगरों ने अपनी रस्सियों और लाठियों को जमीन पर फेंका। उन्होंने लोगों की आंखों में एक फरेब पैदा किया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सांप मैदान में रेंग रहे हों। आम लोग खौफ से चीख उठे। हत्ता कि नबी मूसा के दिल में भी थोड़ा सा कुदरती खौफ पैदा हो गया। तभी अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा, मत घबरा, अपनी असा फेंक दे, ये इन सब के झूठे करतबों को निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है वो सिर्फ जादूगर का धोखा है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता। नबी मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर अपनी असा फेंकी। फौरन वो एक बड़ा हकीकी सांप बन गई। अलिफ वर जादूगरों को निगलने लगी। झूठे मौसीकी उस सांप। चंद लम्हों में मैदान साफ हो गया। जादूगर अपने फन के माहिर थे। उन्होंने फौरन समझ लिया कि जो हजरत मूसा ने दिखाया वो इंसान का जादू नहीं था, ये अल्लाह ताला की अजीम ताकत थी। उनके दिलों की आंखें फिरौन और हजारों लोगों के सामने खुल गईं। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने जोर से ऐलान किया, हम ईमान लाते हैं दुनिया के रब पर, हजरत मूसा और हजरत हारून के रब पर। फिरौन गुस्से और तौहीन से पागल हो गया। उसने चीख कर कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो। यकीनन मूसा तुम्हारे सरदार हैं जिन्होंने तुम्हें जादू सिखाया है। मैं तुम्हारे हाथ और पीर मुखालिफ तरफ से काट कर खजूर के दरख्तों पर लटका दूंगा। लेकिन जो लोग हक की रोशनी देख चुके हैं, क्या वो डर सकते हैं? जादूगर जो कुछ ही देर पहले लालची थे, अब ईमान के पहाड़ बन चुके थे। उन्होंने बेखूफी से जवाब दिया, जो चाहो करो, तुम्हारी ताकत सिर्फ इस मुख्तसर जिंदगी तक महदूद है। हम अपने रब के पास लूटेंगे और वो हमें मुआफ कर देगा। हक व बातिल की इस जंग में फिरौन ज़ाहिरी ताकत में कामयाब हुआ, लेकिन नबी मूसा ने इखलाकी और रूहानी फतह हासिल की। मगर फिरौन की जिद कम न हुई। यहां से इसके बर्बादी की आखिरी गिनती शुरू हुई।
जादूगरों के ईमान लाने और शिकस्त खाने के बाद फिरौन की नफरत अपने उरूज पर पहुंच गई। उसने बनी इसराइल पर जुल्म कई गना बढ़ा दिया। बेगुनाह लोग उसके गुस्से की आग में जलते रहे ताकि फिरौन और उसके लोगों को खबरदार किया जा सके। अल्लाह ने एक के बाद एक अजाब भेजे, तूफान, टिड्डियां, जावे, मेंढक और खून। हर बार फिरौन डर गए और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम से दुआ मांगने लगे, लेकिन जैसे ही अजाब उठा वो फिर अपनी पुरानी तकब्बुर में वापस आ गए। जब उनकी बगावत नाकाबिल मुआफी हो गई तो अल्लाह ने आखिरी फैसला सुनाया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को वही की, मेरे बंदों को लेकर रात को मिस्र छोड़ दो। फिरौन जरूर तुम्हारी पैरवी करेगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल ने छपकर हजारों मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े थोड़े से सामान के साथ तैयार होकर तवील गुलामी की जंजीरें तोड़ दें और रवाना हो गए। रात के सन्नाटे में वो अपनी मंजिल के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस इतना मालूम था कि उनके नबी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। सुबह होते ही फिरौन को पता चला कि नबी मूसा अलैहि अस्सलाम अपनी कौम के साथ फरार हो गए हैं। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, ये लोग तो बहुत छोटे हैं और उन्होंने मुझे नाराज कर दिया है। आज मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दूंगा। फिरौन ने अपनी बड़ी फौज, रथ और हथियार लेकर नबी मूसा अलैहि अस्सलाम के पीछे दौड़ लगा दी। मिट्टी के बादल उठाते हुए वो मौत के हुक्म के साथ दौड़े। इस दौरान नबी मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके लोग सुर्ख समंदर के किनारे पहुंचे। सामने वसी और तूफानी समंदर था, पीछे फिरौन की सख्त लश्कर आ रही थी। बनी इसराइल खौफ से पुकार उठे, ए मूसा, हम फंस गए हैं। सामने समंदर, पीछे फिरौन, अब हमारी मौत यकीनी है। हर तरफ रोने की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन इस शदीद खतरे के बावजूद नबी मूसा अलैहि अस्सलाम पहाड़ की तरह पक्के और मजबूत रहे। उन्होंने अपनी कौम को तसल्ली दी और कहा, कभी नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। तभी अल्लाह ने नबी मूसा अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से समंदर पर मारो। पैगंबर मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर पानी पर ज़रब लगाई। फिर इंसानियत की सबसे हैरत अंगेज वाकया पेश आया। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी की दीवारें पहाड़ों की तरह दोनों तरफ खड़ी हो गईं और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। अल्लाह ने रास्ते की कीचड़ खुश्क करने के लिए हुआ भेजी। पैगंबर मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को जल्दी से इस रास्ते से गुजारा। बनी इसराइल पानी की दाल यवारों के बीच हैरत से चल रहे थे, समंदर ने उन्हें छुआ भी नहीं। जब फिरौन साहिल पर पहुंचा, बनी इसराइल तकरीबन दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। समंदर में इस मजिजाती रास्ते को देखकर वो पहले रुका, मगर उसका गुरूर और शैतानी जिद उसकी आंखें बंद कर चुकी थी। से लगा कि फितरत भी इससे डरती है। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया, इस रास्ते से हमला करो। फिरौन ने अपनी घोड़ी को समंदर के रास्ते में दौड़ा दिया। इसके पीछे हजारों फौजी समंदर के बीचों बीच दाखिल हो गए। जब बनी इसराइल का आखिरी फर्द महफूज दूसरी किरण पर पहुंचा और फिरौन की सारी फौज समंदर के दरमियान थी, अल्लाह का हुक्म आया। एक खौफनाक धाड़ के साथ पानी की बड़ी दीवारें फिरौन और उसकी वीडियो देखने का शुक्रिया।